Good afternoon, all. Good afternoon, sir. So, on the first part, we'll discuss about your doubts. So, if you're having any doubt in homework, please ask. If you're having any doubt in homework, please ask. 43. So, what level 1 classwork? Started, yeah. Yes, sir. Hi, Allah. It is given that if L1, M1, N1, L2, M2, N2 are direction cosines of two vectors and theta is the angle between them, then the value of cos theta is. Okay. So in this question it is given that if L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosines of two vectors. So assume that we are having two vectors. Let's say one is A vector and another one is B vector. Okay. And the direction cosines means the value of cos alpha, cos beta and cos gamma are given. So cos alpha is given as L1, cos beta is given as nothing but L2 and cos gamma is given as nothing but L3 sorry इसको M1 दिया है और N1 दिया है, same with the other one. So by using the direction cosine we can write that vector, right? So we can write this A vector is equal to इसका x component हो गया L1. So we can write L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap.
Same as like that second vector b vector can be written as L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap. समझ में आया? Now Yes, RM is to find out the angle between the vector. So we'll use that concept. A vector dot B vector is equal to A into B into cos theta. So we can write angle between two vector cos theta is equal to A vector dot B vector divided by magnitude of A and magnitude of B. Now we can go for what is this A vector dot B vector. So A dot B can be written as something, but its x component, that is L1 L2 plus y component we can take it as M1 M2 plus z component we can take it as something but N1 N2. That is the value of A dot B divided by magnitude of A vector and B vector. So magnitude of A होगा, that is under root of L1 square plus M1 square plus N1 square into magnitude of B vector can be taken as something but L2 square plus M2 square plus N2 square. Okay. So this will be the value of the value of cos theta over here. Okay. So I think in that question they might be taken, these are unit vectors. मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो सकता है. सो दैट cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 बाय N1 N प्लस N2 N1 N2 मिलेगा. अदरवाइज ऐसा फॉर्म में आना चाहिए. कुछ मेंशन नहीं किया है, बट फॉर गेटिंग आंसर इन दिस फॉर्म इट शुड बी यूनिट वेक्टर्स. So question should be like this: are the direction cosines of two unit vectors? Then only we'll get answer in this form. और बोलो. 48 sir, 48. कौन सा बेटा? 48. So over here it is given that if A vector is equal to 2i cap plus 3j cap and B vector is 2j cap plus 3k cap, the component of B along the direction of A is. तो हमने last class में discuss किया था how to find out component of a vector along another vector. So by using that concept we can find out the answer. So over here it is given that A vector is nothing but 2i cap plus 3j cap. मतलब this is our A cap, the A vector, and this is nothing but our B vector. The component of B along the direction of A is, let's say angle between them is nothing but theta. So we can write the component of B along the direction of A. We can write this is equal to B cos theta. So they are asking what about the value of this B cos theta. अभी देखो क्वेश्चन में देखो उसको वेक्टर का फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब ओनली ये B cos theta का मैग्नीट्यूड चाहिए. अब देखो how we'll find out the value of B cos theta from this equation, that is A vector dot B vector is equal to AB cos theta. We can write the value of this B cos theta. The value of B cos theta is going to be A vector dot B vector divided by A लिख सकता है. So first we can find out A dot B over here. So if you are going for the dot product of these two vector, 2i and अब A vector को B vector में देखो I का component नहीं है, so we'll get as it is 0 plus 3j into 2j, that will get us 6 plus 0 into 3 will get us 0 divided by A vector का magnitude. So magnitude of A vector is under root of x component का square plus y component का square. So we can write this is equal to 6 divided by root of 13. समझ में आया बात? Sir, how you get 0 plus 6 plus 0? इसका x component 0 है ना बेटा B vector का. तो ये वेक्टर देखो, A वेक्टर क्या हो गया 0i cap, सॉरी 2i cap 2i cap plus 3j cap plus 0k cap है ना. ऐसा B वेक्टर को देखो 0i cap plus 2j cap plus 3k cap है ना. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते 0 आएगा ना. Okay, sir. x1 x2 का. Sir, can you please explain 51st one?
51. Over here it is given that if theta is the angle between unit vectors a and b, तो a और b का magnitude 1 है, and then 1 minus a dot b divided by 1 plus a dot b is equal to. So according to this question, it is given that if theta is the angle between two unit vectors a and b, and Rm is to find out the value of 1 minus a vector dot b vector divided by 1 plus a vector dot b vector. So this we can be written as 1 minus a dot b क्या होता है? A b cos theta होता है, and divided by 1 plus a dot b, again we can take it as a b cos theta. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? The magnitude of a vector and b vector are given same. Sorry, 1. So we can take this as 1 minus cos theta divided by this can be written as 1 plus cos theta. तो ऑलरेडी हमने वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ में डिस्कस किया था. व्हाट इज 1 plus cos theta? 1 plus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2. And 1 plus cos theta can be written as 2 cos square theta by 2. So sin square theta by 2 cos square theta by 2 is nothing but tan square theta by 2. Sin by cos. Tan. Got it? Yes, sir. और बोलो. Sir, class work 23rd. 23rd. This one? Yes, sir. ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास. अगर हमने सेम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो सब वैल्यू सेम ही अमाउंट मल्टीप्लाई होगा. तो दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल मींस हमने i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप को कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है. सो वी आर गेटिंग 3i कैप प्लस mj कैप माइनस 9k कैप. So we can write 1 into c, that is c, and that is c I cap plus 2c j cap minus 3c k cap is equal to 3i cap plus 3j cap minus 9k cap. तो c का वैल्यू हमको मिलेगा 3, तो c is equal to 3. अभी दोनों को कंपेयर कर दो तो 2c क्या रहेगा? 2 into 3, that is 6. 6 is equal to nothing but m. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है फिर से उसको डिस्कस नहीं करेगा. ठीक है? और बोलो. 41. 41. Over here it is given that O is at equilibrium. Equilibrium का meaning है net force should be equal to 0. Then the value of tension T1 and T2, 20 Newton is acting vertically downward. तो ये T1 और T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर. So over here, if it is an equilibrium, equilibrium means net force 0 होता है. तो आप अगर ये सब वेक्टर को ऐड करेगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू 0 मिलना चाहिए. तो आप और ये भी बोल सकता है कोई भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आना चाहिए. मतलब फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट will be equal to force acting towards left, or force acting in upward direction should be equal to force acting in downward direction. तो ऐसा क्वेश्चन को बोलो बेटा. तो सर T1 plus T2 का नेट फोर्स 0 आना चाहिए, करेक्ट? नहीं, T1 plus T2 plus 20 should be equal to 0. हाँ. So we can resolve this into its components. For solving this type of question, what we'll do is we'll resolve all the forces in x-axis and y-axis. So this total angle is given as 150. So this angle will be equal to 60. And this angle is given as 60. ये तो 90 रहेगा. So this angle can be taken as something but 30 degree. So we can resolve this tension into its components. So we can observe that component of this T1 along this direction is going to be T1 cos 60. Cos 60 1 by 2 होता है. So we can write T1 by 2. Like that we can resolve the component of T along this direction
आई थिंक इसमें जो एंगल दिया है, ओके दिस इज सॉरी दिस इज ये 30 डिग्री है, एक मिनट मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ये टोटल एंगल 150 दिया था इधर से, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से नहीं है. सो इफ यू आर कंसीडरिंग दिस वन इज आवर वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल क्या रहेगा 90 रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 30. ओके ये टोटल 150 दिया था, तो ये हो जाएगा 30. Now we can resolve this into its components. So component of T1 along this direction is going to be T1 cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So we can write T1 root 3 by 2. And component of T1 along this direction, T1 sin 30. Sin 30 is 1 by 2. So we can write it is T1 divided by 2. And a 20 Newton force is acting in downward direction. Like that we can resolve this T2 into its components. Component of T2 along this direction is going to be T2 cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. And component of T2 along this direction, which is T2 sin 30, which is T2 by 2. समझ में आया क्या किया? So sin 60. Hello sir, Yes, but sir. Follow it. XY divides into 90 degree perpendicular. X और Y, They are perpendicular. X and Y are perpendicular. But here, if we minus 150, नहीं, वो 150 है ना, ये इससे नहीं दिया है, इससे दिया है. समझा? ये एंगल 150 दिया है, okay, okay, yes sir. ताकि ये 30 है, ये 90 है, 90 है, ये 60 है, ऐसा. yes. Got it. Now what we can do is we can write the net force is equal to 0, means the net force acting towards right should be equal to force acting towards left. तो आप देखो टोटल towards right में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, T2 root 3 by 2 एक्सर्ट कर रहा है, एंड लेफ्ट में नेट फोर्स कितना है, T1 by 2 एक्सर्ट कर रहा है. तो we can equate these two. So we can write the value of T2 root 3 divided by 2 should be equal to nothing but T1 divided by 2. So we can cancel this, और आप T1 का वैल्यू ले सकता है root 3 times of T2. ये हो गया one equation. Now same as like this, we can write net force acting in upward direction should be equal to net force acting in downward direction. So the force acting in upward direction is T1 root 3 divided by 2. That should be equal to force acting in downward direction. One is T2 divided by 2 plus another one is 20. Now we can put the value of T1 over here so that we can find out the value of T2. T1 को हम लोग ले सकते हैं root 3 times of T2. So it is root 3 times of T2 into root 3 divided by 2 is equal to T2 divided by 2 plus 20. So we can write this root 3 and root 3, it becomes 3. So 3 T2 divided by 2 minus T2 divided by 2 will be equal to 20. So this will be equal to nothing but T2. So T2 is equal to 20. So T2 का वैल्यू मिलेगा 20. T2 का वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में पुट कर सकता है, तो T1 का वैल्यू मिलेगा, T1 will be equal to 20 root 3. Got it? तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप रिजॉल्व करना है into its components along x and y axis, then we can find out the value. Yes sir, got it. और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? So 53. 53. 53, yeah. Over here it is given that if A plus B is equal to C, the magnitude of B is. को find out करना है B का magnitude क्या है, okay? Sir, it will be C vector minus B vector, no? Yeah, C vector minus A vector. हाँ, But उसका magnitude चाहिए. They are not asking B vector. B vector पूछे तो C minus A होता है. तो उसमें क्या दिया है, A vector plus B vector is equal to C vector. अभी देखना हमको थर्ड ऑप्शन हो, अभी क्या देखना है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, B वेक्टर चाहिए, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो अगर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर, राइट. बट मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर माइनस A वेक्टर ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है, ओके. तो हम लोग क्या करेगा, ये जो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए वी कैन जस्ट गो फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स, ठीक है. तो आपको अगर बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहा है बी के साथ, मतलब ये जो इक्वेशन है उसको आप अगर, और मान लो ये जो इक्वेशन है उसको आप बी
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, ए इक्वेशन को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। मतलब जो इक्वेशन था बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमने क्या किया, दोनों साइड में बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो क्या होगा, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इंटू कॉस 0 विच इज 1, तो बी स्क्वायर आएगा is equal to, we can write as c vector dot b vector minus a vector dot b vector, राइट साइड में भी डॉट प्रोडक्ट किया। तो हमको क्या चाहिए, b चाहिए था, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। समझा? यस सर। आपको अगर a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो a से डॉट प्रोडक्ट करेगा, b का मैग्नीट्यूड चाहिए तो b से डॉट प्रोडक्ट करेगा, c का मैग्नीट्यूड चाहिए तो c से डॉट प्रोडक्ट करेगा, बस। सर ये मेथड 54th में भी कर सकते हैं। बोलो बेटा। Sir, what is difference between a dot product and cross product? We'll discuss about that. बोलो और बोलो। सर 54th में भी यही मेथड यूज कर सकते हैं ना? 54 yeah, same मतलब we can use the same method। उधर हमको क्या चाहिए, m का वैल्यू चाहिए, तो Yes, m के sir. साथ कौन सा है, b है, तो b से डॉट प्रोडक्ट कर दो। अच्छा ओके सर, थैंक यू। और बोलो। सर फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना? b से करना है, या फर्स्ट वाला। So तो 55. क्या आएगा, a डॉट b माइनस c इंटू b डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, या फर्स्ट वन। और बोलो। So 55. 55, it is given that the velocity and acceleration vector of charged particle moving perpendicular to the direction of magnetic field at a given instant of time are v and a are given, then the value of c is, actually ये थोड़ा मतलब आपको और कुछ चीज पता होना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या दिया कि they are perpendicular, ठीक है, v vector and a vector moving perpendicular to the direction। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है परपेंडिकुलर होगा, तो आप आगे पढ़ेगा उसका रीजन क्या है करके, बट अभी इनको मैग्नेटिज्म तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जस्ट कंसीडर दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कोई भी क्वेश्चन में दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है तो उसका मतलब है कि वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इफ यू आर गोइंग फॉर v वेक्टर डॉट a वेक्टर, यू शुड गेट द आंसर एज 0। तभी देखो v वेक्टर डॉट a वेक्टर कर दो तो क्या मिलेगा, 2 into 3 6 प्लस 4 into c दैट इज 4c इज इक्वल टू 0। मतलब 4c का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, तो c का वैल्यू क्या हो गया, 6/4 हो गया, और 3/2 हो गया, या 1.5 हो गया, माइनस 1.5। Okay. आप होमवर्क 55th एक्सप्लेन कर सकते हैं? या होमवर्क 55th yeah। It is given that the component of a along b is √3 times that of component of b along a, then the value of a is to b is। तो क्वेश्चन का मीनिंग है, suppose if you are having two vectors a vector and b vector, तो component of a along b, तो उनको पता है a का component b पे और b का component a पे कैसे फाइंड आउट करना है। लेट्स से इफ यू आर फाइंडिंग आउट component of a along b, तो क्या रहेगा, a cos theta रहेगा, a cos theta। तो component of a along the direction of b अभिषेक इसको मार रहा है, इसको नहीं फिर सर, जो माइक था ना, मतलब लोअर पार्ट है ना, वो मतलब मैंने एक ही ईयर पे लगाया ना। आप म्यूट करके रखने के बाद जो करो करना है करो। ओके So over here a cos theta, component of a along the direction of b is nothing but a cos theta। सेम as लाइक अगर हम लोग उल्टा कर रहा है, मतलब b का कंपोनेंट a का डायरेक्शन में फाइंड आउट कर रहा है, तो b cos दिस इज theta। b, तो b cos theta हो जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपोनेंट ऑफ a along b which is a cos theta,
So A cos theta का वैल्यू √3 दिया है and that of component of B along A. Component of B along A क्या हो गया? B cos theta हो गया. B cos theta का वैल्यू क्या दिया है? √3 times. √3. Okay. So component of A along B, that is A cos theta, is √3 times of component of B along A, मतलब B cos theta. तो क्या होगा? cos theta कैंसिल होगा. हमको क्या फाइंड आउट करना है? A by B फाइंड आउट करना है. तो they are in the ratio √3:1. √3. Okay, sir. Thank you. और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Level 127. Level 1 27 class 27. एक्सरसाइज 1 का बात कर रहा ना? Yes, sir. Yes, sir. Class 27. ओके, ये क्वेश्चन है ना? Yes, sir. If v vector is given, then what scalar must be multiplied so that c into v, मतलब c के साथ मल्टीप्लाई करे तो उसका मैग्नीट्यूड आपको 7.5 मिलना चाहिए. तो पहले देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? Sir, it will be 5. Sir, 5. 5 है ना? तो 5 से हम लोग कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है so that we should get the answer 7.5. बस इतना ही पूछा. टेक्स्ट का वैल्यू क्या रहेगा? 7.5 divided by 5. 1.5. 1.5. Got it? Yes, sir. और बोलो. Sir, classwork 41st question. Five, right? 41st. Sir, Yeah. 41st. 41st. Okay. Yes. 41. Yeah. ये अभी किया ना? Yes, sorry, sir. और बोलो. 47. So 45th वाला. 47. Sir, वो triangle. The right angle, yeah, right angle triangle. The three vectors A, B, S, C added to 0. Then A dot B is. अब देखो बेटा, A dot B क्या होता है? A dot B is equal to nothing but AB cos theta होता है. अभी आप देखो A वेक्टर और B वेक्टर का बीच में एंगल कितना है इधर? So 90 degree. 90 डिग्री है ना? तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना? 0 मिलेगा. हाँ. दो वेक्टर से खाली इसका डायरेक्शन निकालो. तो दो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. Yes, so Excuse me, 45th one. बोलो बेटा. Sir, classwork और homework में there are some questions related to like magnetism का part also. उसको approach नहीं, कैसे? वो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो छोड़ दो. मतलब वो खाली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने के लिए उसको यूज कर रहा है. तो Okay, sir. मैग्नेटिज्म का कुछ लर्न करने का जरूरत नहीं है इसमें. Okay. वो खाली परपेंडिकुलर या पैरेलल होगा उसके ऊपर ही है. ठीक है. 45th it is given that when a force vector act on a body and produces a displacement of this, then work done is. तो अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, वी शुड गो फॉर डॉट प्रोडक्ट. तो वर्क डन क्या था? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. तो एफ वेक्टर क्या था? आई कैप प्लस I cap plus 2 J cap plus K. प्लस के कैप डॉट एस वेक्टर. एक्स वेक्टर इज 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप. फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है. तो 1 into 4 4, 2 into 1 2, 1 into 7 7. So we can write this will be equal to 13 and work का Sir, यूनिट है जूल. सर पता कैसे चलेगा? मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है फिर क्रॉस वो प्रोडक्ट करना है? आप मैंने आगे कोई भी पार्ट में डिस्कस करेगा तो हम लोग बोलेगा कि क्या करना है. अभी खाली आप इतना याद रखो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है. Okay. तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना है. और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है. ऐसा. Okay, sir. बाकी Torque हर एक के लिए चैप्टर में जो cross भी है नया Okay. नया टॉपिक है तो हम लोग बता देगा कि ये वेक्टर है कि स्केलर है. Okay. तो वेक्टर है, वर्क स्केलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करेगा. टॉर्क वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा. ऐसा. Okay, sir. और बोलो. 38, sir. 38. If a particle is displaced from 0 0 0 मतलब origin
to a point xy plane which is a distance of 4 unit in a direction making an angle clockwise 60 degree with the negative x-axis. What is the final position of vector of particle? मतलब हमको इसका पोजीशन वेक्टर i j k में लिखना है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं पार्टिकल किधर है या उसका वेक्टर क्या है, फिर हमने इसको x y में इसको लिख देंगे। फिर it is given that if a particle is displaced from origin, तो मान लो this is representing our origin, तो origin से displace किया है 2 on xy plane which is a distance of 4 unit in a direction making clockwise 60 degree with negative x-axis। तो ये हो गया हमारा negative x-axis। negative x-axis में से clockwise direction, ये हो गया clockwise direction में 60 degree, ठीक है। and ये distance है 4 unit दिया है, तो this is our vector। but a vector को x और y component में representation करना, so we can write component of 4 vector along this direction। this will be equal to 4 cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो 4 into 1/2 2। same as like that the component of this 4 vector along this direction, what is that 4 sin 60। sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, so we can write 2√3। now we can represent it in vector form। vector form में x का component क्या हो गया 2 हो गया, but that is along the negative x axis, so we'll write -2 i cap। y का वैल्यू क्या हो गया 2√3 हो गया, in which direction positive direction of y axis, तो 2√3 j cap। got it? Yes, sir. और बोलो। So classwork 26 one. class work 26 ये क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. A vector perpendicular to the vector I cap plus 2 j cap and having a magnitude of 3√5 unit s। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको एक वेक्टर चाहिए which is perpendicular to this। So if a vector is perpendicular to this, their dot product should be equal to 0, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 3√5 चाहिए। समझ में बात? तो हमको क्या चाहिए, ये पूरा कौन सा वेक्टर है वो फाइंड आउट करना। तो हम लोग ये एक तरीका है, अब आप ऑप्शंस में कर सकता है, आप पहले देख सकते हैं ऑप्शंस में कौन सा वेक्टर इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बोलो मतलब एक कौन सा वेक्टर के साथ, ऑप्शन में कौन सा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो हमको आंसर 0 मिलेगा। अब अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर कर रहा है डॉट प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा आंसर 3 into 1 3 प्लस 12, वो तो 0 नहीं आएगा। अब इसमें देखो तो क्या आएगा 6 - 6, तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये पॉसिबल है। ये आप नेक्स्ट देखेगा तो 4 into 1 दैट इज 4 - 4, तो ये भी पॉसिबल है। और नेक्स्ट में देखो तो 1 - 4 वो पॉसिबल नहीं है, तो 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अभी देखना है नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना चाहिए 3√5 चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो 16 प्लस 4 हो जाएगा, तो वी कैन राइट विल बी इक्वल टू √20। तो ये 3√5 का फॉर्म में नहीं आएगा, बट अगर इसमें मैग्नीट्यूड निकालेगा तो इट विल बी इक्वल टू √6 का हो गया 36 प्लस इसका हो गया 9, तो 45। 45 को हम लोग 9 into 5 लिख सकता है, तो 9 का रूट क्या हो गया 3 और 3√5 ऐसा कर सकता है। अदरवाइज दूसरा एक मेथड है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो जो वेक्टर मिलने वाला है उसका x कोऑर्डिनेट पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट भी पता नहीं, तो मान लो x i cap plus y j cap is a vector which is perpendicular to this vector a vector, let's say i cap plus 2 j cap। तो if these two सर हम vectors are, √20 को भी तो 2√5 लिख सकते हैं ना? हाँ लिखो लिख सकते हैं। ओके तो ओवर हियर अगर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा x plus 2y should be equal to 0। Yes, sir. तो हमको एक रिलेशन मिलेगा 2y should be equal to x minus of x, या x is equal to minus of 2y। then हमको ये भी पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है that should be equal to x square plus y square under root।
उसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 3√5 मिलना चाहिए। तो वी कैन राइट दिस शुड बी इक्वल टू 3√5। अभी दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 into 5, मतलब 45 आना चाहिए। अभी हमको अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y पे रिप्लेस कर दो। तो इंस्टेड ऑफ x इफ यू आर पुटिंग 2y तो उसको स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो हमको मिलेगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 9। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू मिलेगा, तो x विल बी इक्वल टू 2 minus 2 into y, दैट इज -6। तो ऐसा भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और बोलो। Sir, 48 question. 48 No, sir, 40. 40. If A makes an angle 45 degree and 60 degree with x and y axis respectively, then angle made by it with z axis is. So if a vector makes an angle alpha, beta and gamma with respect to x axis, y axis and z axis, then this cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine. याद है? Yes, sir. तो Yes, क्वेश्चन sir. में अल्फा का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है। बीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री और गामा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेगा, cos स्क्वायर अल्फा cos square alpha plus cos Plus square beta gamma plus- beta plus- plus cos square gamma is equal to 1. वो कंसेप्ट यूज करके आंसर मिल जाएगा। और देखो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos 60 1/2 होता है उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। So we can write the value of cos square gamma will be equal to 1 minus 1/4 या 1/4 plus 1/2 लिख सकता है। So we can write this will be equal to 1 minus, अब अगर इसको 4 का LCM ले रहा है तो we can write this will be equal to 1 plus 2. So we can write this is equal to nothing but 1 minus 3 divided by 4, that is equal to 1/4. तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1/4 है, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए ना। cos 60 is 1/2। Got it? Yes, sir. और कुछ में डाउट है? Doubt in any other questions? So we'll continue with our that theory part. हमने क्रॉस प्रोडक्ट तक डिस्कस किया था, है ना। तो लास्ट में क्या डिस्कस किया है क्रॉस प्रोडक्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये किया था ना, के डॉट के क्रॉस के आई क्रॉस के, वो सब किया था ना। हाँ यस, ओके। नाउ विल डिस्कस, अभी हम लोग अगर वेक्टर्स आई जे के का फॉर्म में दिया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है। ओके, so assume that we are having a vector, take it as a vector, is represented by x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and our aim is to find out its cross product with another vector, take it as x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap। समझा? पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हमने जो नॉर्मल ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी कैसे किया ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट विल गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
x1 i कैप क्रॉस x2 i कैप, क्या मिलेगा आंसर? i क्रॉस i, next to I cap. i So क्रॉस i zero. का वैल्यू 0, 0 ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा, x1 i कैप क्रॉस y2 j कैप करेगा, तो बोलो क्या मिलेगा आंसर? सर x K cap. x1 y2 x1 y2 k y2 cap. हाँ i x1 क्रॉस y2 j, कैप i क्रॉस j is nothing but k, तो we can K write cap. k कैप। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेगा, नेक्स्ट करेगा x1 i कैप क्रॉस z2 k कैप, क्या मिलेगा आंसर? x1 z2 minus j x1 cap. z1 j cap। Minus j cap. तो वी कैन राइट x1 is z2, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं i क्रॉस k, i क्रॉस k क्या Minus आएगा? j. माइनस j आएगा, माइनस j कैप। तो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j कैप, ठीक है। फिर हम लोग करेगा y पे, तो मान लो इफ आई एम गोइंग फॉर i1 j कैप क्रॉस x2 i कैप, क्या मिलेगा? x2 y1 plus into y1 x2 y1 and minus y1 k cap. k cap j क्रॉस i कर रहा है, तो क्या आएगा? माइनस के माइनस k Minus k कैप, cap. Minus k cap. हाँ माइनस k कैप, राइट। अभी हम लोग क्या करेगा, i1 j कैप क्रॉस y1 j कैप प्लस y2 j कैप, क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। फिर हम लोग इसके साथ करेगा y1 j कैप क्रॉस z2 k कैप, बोलो क्या आएगा? y1 z2 I cap. y1 z2 आई j कैप क्रॉस I k, cap. j क्रॉस k आएगा I आई cap. कैप सर I cap, so we can write that will be equal to nothing but I cap, got it? फिर से हमने z axis में करेगा, तो if you would like to find out with respect to z axis, तो z1 k cap क्रॉस x1 I cap, क्या आएगा आंसर? जे x2 z2 sorry x2 z1 जे के k cross I करना है। what is k cross I? J cap. j cap है कि माइनस j cap है? minus j cap Minus J. Minus j plus cap, so we can write as minus j cap। कहला तब अभी हम लोग क्या करेगा, z1 प्लस आएगा। मला काहीतरी खायला पाहिजे, मला खूप अथर्वा z1 k cap क्रॉस y2 j cap, क्या मिलेगा आंसर? y2 z1 into k Minus क्रॉस I j। minus I cap. श्रीनो Minus I कुछ cap. डाउट है क्या? सर पता कैसे चलेगा कब माइनस साइन और कब प्लस साइन आएगा? इसलिए पढ़ाते हैं ना पहले, हाँ इसलिए पहले कुछ पढ़ाते हैं। सर कल के लेक्चर में नेटवर्क इश्यूज की वजह से नहीं बैठ पाया था सर। ओके, तो मैं बोला ना, आप कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो मेरे को इन्फॉर्म कर दो। यस सर, सर आपने लिंक भेजा तो मैंने आज जस्ट मॉर्निंग में चेक किया, तो वो देखना है मुझे। ओके ऐसा, तो एक दिन पहले भेजे तो उसको बेटा, कोई भी क्लास प्रीवियसली कोई भी क्लास अगर मिस हो गया, एक भी क्लास मिस हो गया तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो क्लास मिस करो, अगर गलती से क्लास मिस हो गया इन्फॉर्म कर दो, और एक क्लास से पहले उसको आप देखना ही चाहिए, वरना कुछ मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, आज का कुछ भी बोला आप मतलब डिस्कस करें, आपको समझ में नहीं आएगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक रिवाइज इट अगेन, बिकॉज बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस ओके, तो आप उसको देख लो और फिर से आज का भी देख लो, ओके सर। ठीक है? और आज का भी नहीं देखा फिर वो बढ़ते जाएगा, आपको जो बैकलॉग है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो अभी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप कल इतना याद रखो, आई जे के, आप अगर इसको ये डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, उल्टा जाएगा तो नेगेटिव मिलेगा। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंड आई क्रॉस जे, या आई क्रॉस जे जाएगा तो प्लस के मिलेगा, जे क्रॉस के करेगा तो प्लस आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेगा तो माइनस प्लस जे मिलेगा। उल्टा जाएगा मतलब आई क्रॉस के करेगा तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेगा तो माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई करेगा तो माइनस के आएगा। ठीक है, ओके सर।
अभी हमने लिखा था y2 z1 इंटू k क्रॉस j, तो k क्रॉस j कर रहा है तो क्या आएगा माइनस I cap. आई कैप आएगा, करेक्ट। बट अभी देखो ऐसा ऐसा अगर एक एक टर्म को लेके करना है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम लोग एक दूसरे एक मेथड यूज करके डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकता है, तो विल डिस्कस अबाउट दैट। हम लोग डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, वो यूज करके करते हैं। तो विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b बाय यूजिंग सम अदर मेथड। सो हमारा a वेक्टर था व्हिच इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है विथ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर आपको a क्रॉस b करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, i कैप j कैप k कैप, इसको ऐसा लिखना है। अपने मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट मेथड पढ़ा होगा, सेम मेथड यूज करके ही कर रहा, ओके। तो i j k ऐसा लिखना है। फिर आपको अगर a क्रॉस b फाइंड आउट करना है तो पहले a का कंपोनेंट लिखना है। तो a का x का कंपोनेंट था x1, y का कंपोनेंट था y1 और k का कंपोनेंट था z1, वो लिख दिया। उसके बाद b का कंपोनेंट लिखना है। b का x का कंपोनेंट था x2 और y का कंपोनेंट है y2 और z का कंपोनेंट है z2, करेक्ट। तो उसके बाद लाइक मैट्रिक्स, क्या सेम सेम मैट्रिक्स जैसा ही। हाँ ओके। अभी हम लोग देखते हैं इसका आगे कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको ऐसा लिखेगा, उसके बाद हम लोग करेगा कि x1 इसका a क्रॉस b का वैल्यू रहेगा। पहले i कैप का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर माइनस ऑफ j कैप का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर प्लस ऑफ k कैप का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले होगा i कैप माइनस j कैप, ये नेगेटिव साइन इधर पुट करना है, माइनस j कैप प्लस k कैप। अभी देखते हैं i कैप का कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। आप अगर i कैप को, i का जो है उसको सिलेक्ट करेगा फर्स्ट, तो ये कॉलम और ये रो को हम लोग एलिमिनेट करेगा, ठीक है। फिर पहले हमेशा ये डायरेक्शन में जाना है, पहले हमेशा ये डायरेक्शन। तो क्या आएगा y1 z2 माइनस ये डायरेक्शन में, ओके। तो देखो हमको आंसर क्या मिलेगा, विल गेट इट एज इक्वल टू नथिंग बट y1 z2 माइनस y2 z1, समझा। सेम एज लाइक दैट यस जे पे भी करना है। अगर आप जे पे फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, जे का सेलेक्ट करेगा, एक कॉलम और रो को एलिमिनेट करेगा। देन विल गो फॉर फर्स्ट ये डायरेक्शन में x2 z1 माइनस x1 z2 होगा ना, x1 z2 माइनस ये डायरेक्शन में x2 माइनस z1। x2 z1। तो हम लोग लिखेगा इसका जो j का कंपोनेंट है दैट इज x1 z2 माइनस x2 z1। देन हम लोग देखते हैं उसका k का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ये करेगा, एक कॉलम और रो को एलिमिनेट करेगा। फर्स्ट विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो क्या आएगा x1 x1 y2 then we'll go for in minus this direction minus x2 y1. So we can write our final answer will be equal to x1 y2 minus x2 y1, समझा। यस सर। तो ये मेथड से हम लोग डायरेक्टली ये जो भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकता है, ओके। सर एग्जांपल add-on- मिले, एग्जांपल दो ना। yes. Write down this one, first write down this one। पहले लिखो if a vector is equal to x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and b vector is equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap and rm is to find out a vector cross b vector। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेगा, इसको ऐसा लिखेगा i j k, फिर x का कंपोनेंट लिखे, a का कंपोनेंट लिखेगा x1 y1 z1, फिर b का कंपोनेंट लिखेगा x2 y2
Z2। फिर क्या करेगा, इसका फर्स्ट आई के लिए हम लोग क्या करेगा, ए कॉलम और ए रो को एलिमिनेट करेगा। फर्स्ट ए डायरेक्शन में जाएगा तो y1 Z2, y1 z2 तो विल राइट y1 Z2 माइनस minus y2 z1 y2 Z1, देन हो जाएगा माइनस j कैप। फिर हमने लिखेगा j का कॉलम और रो एलिमिनेट करे तो y1 x1 Z2 माइनस x2 Z1। फिर हम लोग लिखेगा k पे, तो k का डायरेक्शन में हो जाएगा विच इज x1 y2 माइनस x2 y1, राइट। सर इसमें सब तो 1 2 2 1 हो गया ना, जैसे कि y1 z1 तो उसका फिर अपोजिट y2 z1 या 1 2 1 2 1 2 सब में 1 2 हो गया। यस सर डन। अभी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, लाइक इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, so let's say if two vectors are parallel, means if a vector and b vector are parallel, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या मिलेगा? If a and b are parallel, तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 0 So we can write a vector cross b vector should be equal to nothing but a 0 vector, right? Yeah. अभी देखो, हमने a पहले जो हमने वेक्टर कंसीडर किया था, a वेक्टर और b वेक्टर, अगर वो पैरेलल है तो इसका जो वैल्यू है 0 होना चाहिए, राइट? अगर इसका वैल्यू 0 है मतलब उसका x कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, y कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, z कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू है a भी 0 होना चाहिए, ये पार्ट पूरा मिला के a भी 0 होना चाहिए, ये पार्ट पूरा मिला के a भी 0 होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को सेलेक्ट करेगा तो वी कैन राइट y1 z2 माइनस y2 z1 शुड बी इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकता है y1 z2 should be equal to y2 z1, or you can write this y1 by y2 should be equal to z1 by z2। समझा? So we can say that when two vectors are parallel, उसका y component का ratio और x component, z component का ratio same होना चाहिए। Same as like that from the second part, मतलब इसमें से हम लोग लिख सकता है the value of x1 z2 minus x2 z1 should be equal to 0. That means x1 z2 should be equal to x2 z1. So we can write this x1 by x2 should be equal to z1 divided by z2। समझा? तो ये सब मिला के हम लोग लिख सकता है if two vectors are perpendicular, the value of x1 by x2 should be equal to y1 by y2, that should be equal to z1 divided by z2। समझा? सर ये हर एक पैरेलल वेक्टर पे हर एप्लीकेबल होगा, हर एक पैरेलल वेक्टर, मतलब वो शायद से क्रॉस प्रोडक्ट हो या फिर डॉट प्रोडक्ट हर ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। if two vectors are parallel, their ratio x1 by x2 should be equal to y1 by y2 should be equal to z1 by z2। okay, put down this one. If two vectors are parallel, if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, then
x1 by x2 should be equal to y1 by y2 should be equal to z1 by z2. y1 by y2 should be equal to z1 by z2. Now I'll take some numerical example for this cross product. You can write a Can you question. scroll up? If उधर कुछ नहीं है, कल इतना ही लिखना है x1 by x2 is equal to y1 by y2 is equal to z1 by z2. Then write down a question लिखो. If a vector is equal to I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and b vector is equal to 2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap, and RM is to find out a vector cross b vector. Find out करना है a vector cross b vector. Find out. पहले क्या करना है I j k ऐसा लिखना है, फिर a क्रॉस b करना है तो a का कंपोनेंट 1 2 minus 3, then 2 4 minus 2. समझा? इसके बाद लिखना है I, then minus j, then plus k. Find out the answer. Sir, 8 I cap minus 4 j cap. 8 I cap minus 4 j cap. Okay. Yes, sir. 8 minus. Everyone is getting the same answer. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले हम लोग देखते हैं आई कैप का करना है. तो आई कैप का करना है, so we will go for this two, like this into this. तो क्या आएगा -4 minus this into this. तो ये क्या आ जाएगा -12. तो माइनस ऑफ -12, तो ये क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा. Then we'll go for j cap. j cap में क्या करेगा, we'll go for this part, means this into this. तो क्या Sir, आएगा Sir, it should be -12, right? minus No, it of will be -12. 12 only. Minus of -12 है ना बेटा. So where is Minus plus. नहीं समझा? where is there's no extra minus, right? A2 और A -2 क्या आएगा, -4 आया, -4. माइनस 10 माइनस अच्छा, इसका that प्रोडक्ट is- है ना, -12 है ना. Then we'll go for this to this into this. तो क्या आएगा, minus of -6. Got it? This minus -6. Then we'll go for k component. So if you are going for k component, so we'll go for this into this. So that will be equal to 4 minus 4. this into this 4. That will be equal to 0. So is the तो ये answer क्या आएगा, 8I plus 4j? या 8 I cap प्लस 4 ये क्या G. जाएगा, -4j आएगा ना. Yes, sir. नेगेटिव है, -4j. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. माइनस -2 नहीं, plus नहीं. 6. Here Minus it's 4 -2, 4, फिर -j okay. into plus -2 plus 6. That is 4. plus 4. Plus 4. Minus Plus j 4 into- into -5. That is -4. Okay, Got it? sir. Yeah. कुछ डाउट है इसमें? Sir, can you give more sums? बोलो बेटा, क्या बोला? Can you give more sums like that? Yes, yes. I'll give one homework. Okay.
So we'll continue next class. Thank you. Thank you.